بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, suggestions, comments and queries. I am Muhammad and today we are going to read chapter number 12 at Grandfather's House from New Oxford Modern English Book 3, and it is the third edition of this book. اس چیپٹر سے ریلیٹڈ اور اس بک سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ اور نیسیسری لنکس ہیں سبھی ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. اینڈ اف یو ہیو اینی کمنٹ query اور سجیشن ریلیٹڈ ٹو مائی کنٹینٹ اینڈ مائی نیش یو کین فریلی ٹیل می ان دا کامنٹ باکس بلو. اور اگر میرے چینل کو فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو میک شیور کر لیں کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں. چلیے اپنا آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. The name of this chapter is At Grandfather's House. Grandfather کا ورڈ دادا یا نانا دونوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس پری ریڈنگ. Talk to the class about your grandparents. اپنی کلاس سے اپنے ہم جماعتوں سے آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں بات کریں, یعنی دادا دادی یا نانا نانی کے بارے میں بات کریں. ڈو یو اسٹے ود دیم, کیا آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں, اور وزٹ دیم, یا پھر کیا آپ ان کے گھر جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے یا ان کے پاس رہنے کے لیے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ورڈس ٹو نو, ایسے الفاظ جن کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ سکیں. پہلا ورڈ ہے بنڈل, A collection of things tied or wrapped up together, یعنی کسی بھی چیز کا ایک بنڈل بنا ہو جس کو ریپ کیا گیا ہو اور باندھ دیا گیا ہو اکٹھا. سیکنڈ ورڈ ہے ہمارے پاس ایکسپلور, move through an unknown area in order to learn about it, کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے وہاں پہ چکر لگانا یا گھومنا, اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ وہاں کے بارے میں کچھ جاننا چاہ رہے ہیں, کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ آپ نے فرسٹ ٹائم وزٹ کیا ہے اور آپ اس ایریا کو نہیں جانتے تو اسے جاننے کی نیت سے وہاں گھومنا. نیکسٹ ورڈ ہے فیچڈ, براٹ, گاٹ, یعنی کوئی چیز لے کر آنا یا کوئی چیز پکڑنا یا لے کر آنا اس کو. ہیپ, پائل, یوزلی انٹائڈی, پائل بولتے ہیں کسی چیز کا ڈھیر, لیکن عام طور پر اس کو جب یوز کیا جاتا ہے تو اٹ مین بہت صفائی یا ستھرائی کا خیال نہیں رکھا گیا اور ایک انٹائڈی سی چیز ہے جس کا ڈھیر لگا ہوا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریئلائزڈ, became aware of something, کسی چیز کو جاننا. ٹائڈلی, نیٹلی, آرڈرلی, ترتیب کے ساتھ اور بہت صفائی کے ساتھ اچھے طریقے سے, اس کو ہم ٹائڈلی بولتے ہیں. ہیڈی has just been left at her grandfather's house, ہیڈی کو ابھی ابھی اس کے گرینڈ فادر کے گھر پر چھوڑا گیا ہے for the first time, پہلی دفعہ. she is 5 years old, اور وہ 5 سال کی ہے. as soon as the woman left, جیسے ہی وہ عورت وہاں سے گئی. گرینڈ فادر سیٹ ڈاؤن, گرینڈ فادر بیٹھ گئے. آن دا بینچ, ایک بینچ کے اوپر. آؤٹ سائڈ ہز ہاؤس, جو ان کے گھر کے باہر کی طرف تھا. ہیڈی سا دیٹ ہی واز بزی اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو ایکسپلور, ہیڈی نے دیکھا, سا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, ہیڈی نے دیکھا کہ وہ مصروف ہے, بزی میننگ مصروف, اینڈ ڈیسائیڈیڈ اور فیصلہ کیا, ٹو ایکسپلور کہ وہ آس پاس گھومے گی گھر کے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے گی, ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گی. She walked round the side of the wooden building, وہ اس لکڑی سے بنی ہوئی عمارت کے ایک طرف کو چلی گئی. She noticed, اس نے نوٹس کیا یا اس نے توجہ مرکوز کی. An empty goat house, وہاں پر ایک بکری کا گھر ہے جو کہ خالی ہے. And some tall trees, اور بہت لمبے لمبے درخت ہیں. The wind made a rushing and roaring sound as it blew through their tall branches, اور جب ہوا ان کی لمبی لمبی شاخوں میں سے یا بڑی بڑی شاخوں میں سے گزرتی ہے تو اس سے رورنگ کی آواز آتی ہے. رشنگ اور رورنگ سے یہاں پر مراد تیز اور گرجدار آواز کہہ سکتے ہیں. ہیڈی واکڈ اراؤنڈ اینڈ فاؤنڈ ہر سیلف بیک نیکسٹ ٹو گرینڈ فادر, ہیڈی وہاں سے آگے چلتی رہی اور واپس اس نے اپنے آپ کو اپنے گرینڈ فادر کے پاس پایا, یعنی اس نے پورے گھر کے آس پاس کا ایک چکر مکمل کر لیا تھا. She stood in front of him and waited, ان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انتظار کرنے لگی. Grandfather noticed the girl, گرینڈ فادر نے لڑکی کی طرف نوٹس کیا یا اس کی طرف توجہ دی. And asked, اور پوچھا, What do you want, تمہیں کیا چاہیے.
Hades' eyes were bright with excitement. हेडी की आंखें खुशी से चमक रही थी. I want to see what is inside the house. मैं देखना चाहती हूँ घर के अंदर क्या है, she said. उसने कहा. She looks like a clever child. वो एक समझदार बच्ची लग रही थी, thought grandfather. grandfather ने सोचा. He stood up. वो उठ खड़े हुए. Come then. फिर आओ. एंड ब्रिंग योर बंडल ऑफ क्लॉथ्स. और अपने कपड़ों का बंडल यानी कपड़ों की जो तुमने एक बंडल बनाया हुआ है, इनको पैक किया हुआ है, इनको भी ले आओ. ही सेड. उन्होंने कहा. वी मस्ट पुट देम इन द कबर्ड. हमें इनको कबर्ड में रखना चाहिए. इनसाइड द हाउस. घर के अंदर. हेडी लुक्ड राउंड. हेडी ने इधर उधर देखा या इर्द गिर्द देखा. द ग्राउंड फ्लोर वॉज वन बिग रूम. और जो ग्राउंड फ्लोर था घर का, जो पहली मंजिल थी, वो एक बड़ा सा कमरा था. Grandfather's bed was in one corner. और grandfather का जो बिस्तर था वो एक कोने में था. A large fireplace was in the middle of the back wall of the house. Back wall बोलते हैं पुश्ती दीवार को, या उसकी जो पीछे की तरफ की दीवार थी उसके बिल्कुल दरमियान में एक fireplace बोलते हैं अंगीठी को, एक अंगीठी थी. Next to it, उसके साथ ही, there was a large cupboard. वहाँ एक बड़ी सी कबर्ड थी या बड़ी सी अलमारी थी. With some shelves. और इसके अंदर कुछ shelves थी. Inside the cupboard. इस कबर्ड के अंदर. There were cloths. कपड़े थे. On one of the shelves. उनमें से एक शेल्फ पर. Hedy pushed her bundle to the back of this shelf. और हेडी ने अपने कपड़ों का बंडल भी इसी शेल्फ पर रख दिया या धकेल दिया. आउट ऑफ द वे. यानी उसकी जगह नहीं थी, लेकिन उसने उसकी जगह बनाकर, उसका रास्ता बनाकर वहाँ पर उसको रख दिया. On another shelf. एक और शेल्फ पर were some plates. कुछ प्लेट्स थी. बाउल्स प्याले थे. कप्स प्यालियाँ थी. एंड स्पून्स और चम्मच. एंड अ नाइफ और एक छुरी या चाकू. बिलो देम उनके नीचे. देयर वाज अ लॉफ ऑफ ब्रेड. वहाँ पर ब्रेड का एक टुकड़ा था. सम मीट कुछ गोश्त. एंड सम चीज़ और कुछ पनीर. हेडी लुक्ड केयरफुली अराउंड द रूम एंड आस्क्ड. हेडी ने बहुत मोहतात होकर इर्द गिर्द कमरे में देखा और पूछा. वेयर विल आई स्लीप ग्रैंडफादर. दादा अबू या नाना अबू, मैं कहाँ सोऊंगी. वेयर एवर यू लाइक. ही एंसर्ड. उन्होंने जवाब दिया, जहाँ भी तुम चाहो या जहाँ भी तुम पसंद करो. हेडी वॉज डिलाइटेड. हेडी बहुत खुश थी. एंड बिगैन लुकिंग टू फाइंड द बेस्ट प्लेस टू स्लीप. बिगैन का मतलब होता है शुरू करना. लुकिंग तलाश या देखना. टू फाइंड द बेस्ट प्लेस कि वो बेहतरीन जगह का इंतखाब कर सके. टू स्लीप सोने के लिए. तो उसने अपने सोने के लिए बेहतरीन जगह की तलाश करना शुरू कर दी. इन द कॉर्नर. एक कोने में. नियर हर ग्रैंडफादर्स बेड. उसके ग्रैंडफादर के बिस्तर के पास ही. शी सॉ अ शॉर्ट लैडर. उसने एक छोटी सी सीढ़ी देखी. अगेंस्ट द वॉल. जो कि दीवार के मुखालिफ सिमत में थी. शी क्लाइम्ड अप. वो उसके ऊपर चढ़ी. एंड फाउंड हर सेल्फ इन द हे लॉफ्ट. और वहाँ पर उसने अपने आप को एक घास या भूसा ज़ख़ीरा करने वाली जगह पर पाया है. बोलते हैं घास, या इसको जड़ी बूटियों के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, छोटी छोटी जो जानवरों के खाने के लिए यूज़ की जाती हैं. देयर ले अ लार्ज हीप ऑफ फ्रेश स्वीट स्मेलिंग है. और यहाँ पर एक ढेर लगा हुआ था हे का, उस भूसे का या उस घास फूस का, जिससे स्मेल आ रही थी बहुत, क्योंकि वो फ्रेश था. इन द वॉल वॉज अ राउंड विंडो. और दीवार में एक गोल सी खिड़की थी. हेडी लुक्ड आउट ऑफ इट. हेडी ने इससे बाहर देखा. शी कुड सी राइट डाउन द वैली. और वहाँ से वो बिल्कुल नीचे की तरफ वादी में देख सकती थी. आई शैल स्लीप अप हियर ग्रैंडफादर. शी कॉल्ड डाउन टू हिम. उसने नीचे अपने ग्रैंडफादर से कहा कि मैं यहाँ ऊपर सोऊंगी. इट्स लवली अप हियर. यहाँ पर ऊपर बहुत अच्छा है. कम अप एंड सी हाउ लवली इट इज़. ऊपर आएँ और देखें ये कितना अच्छा है. ओह आई नो. मैं जानता हूँ. ऑल तमाम. अबाउट इट. इसके बारे में. ही आंसर्ड. उन्होंने जवाब दिया. उसके दादा अबू ने जवाब दिया कि मैं इसके बारे में सब जानता हूँ. आई एम गेटिंग द बेड रेडी नाउ. शी कॉल्ड डाउन अगैन. उसने नीचे फिर दोबारा से उनको बुलाकर कहा कि मैं बिस्तर तैयार करने वाली हूँ. बट आई विल नीड अ शीट. लेकिन मुझे एक चादर की ज़रूरत है. यू कांट हैव अ बेड विदाउट अ शीट. आप एक बिस्तर नहीं बना सकते बगैर किसी चादर के. यू हैव टू हैव वन टू लाई अपॉन. आपको एक चाहिए ही चाहिए ताकि आप उस पर लेट सकें. ऑल राइट. अच्छा. सेंड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा ठीक है. ही वेंट टू द कबर्ड. वो अलमारी की तरफ गए. आफ्टर सर्चिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स.
कुछ मिनट्स तक तलाश करने के बाद ही पुल्ड आउट अ थिक हैवी ओल्ड क्लॉथ, उन्होंने खींच निकाला या बाहर निकाला, एक थिक बोलते हैं मोटे को, हैवी भारी, एंड ओल्ड पुराना, यानी उन्होंने मोटा भारी और पुराना कपड़ा खींच निकाला। इट वॉज अ बिट रफ, और ये थोड़ा सा रफ था, यानी इतना अच्छा नहीं था, इतना सॉफ्ट नहीं था, बट इट वॉज ऑल ही हैड, लेकिन यही था जो उनके पास था। दैट कुड बी यूज्ड एज अ शीट, जिसको चादर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ही कैरिड इट अप टू द लॉफ्ट, वो उसको लॉफ्ट तक ले गए, यानी ऊपर जो सीढ़ियों के ऊपर जगह थी वहाँ पर ज़ख़ीरा करने की, वहाँ ले गए इस चादर को। इन द लॉफ्ट, बाला खाने में, हेडी हैड ऑलरेडी मेड क्वाइट अ नाइस बेड, हेडी पहले ही बहुत अच्छा और बहुत आरामदेह बिस्तर बना चुकी थी। शी हैड पुट एन एक्स्ट्रा हीप ऑफ हे एट वन एंड फॉर अ पिलो, और उसने एक सिरे पर एक वन एंड यानी एक किनारे की तरफ उसने थोड़ा सा जो हे का ढेर था उन जड़ी बूटियों का, उस घास फूस का, वो थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा कर लिया ताकि वो उससे तकिए का काम ले सके। शी हैड अरेंज्ड इट, उसने इसको तरतीब दिया, इन अ वे, इस तरीके से, दैट व्हेन इन बेड, जब वो बिस्तर में हो, शी वुड बी एबल टू सी, वो इस काबिल होगी कि वो देख सके, आउट थ्रू द राउंड विंडो, उस गोल खिड़की से बाहर, यानी उसने अपने बिस्तर को इस तरह से तरतीब दिया कि अगर वो बिस्तर में लेटी हो तो भी वो उस गोल खिड़की से बाहर का नज़ारा कर सके और बाहर देख सके। वेल डन, सेड हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर ने कहा, बहुत अच्छा। नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट, अब हमें चाहिए कि हम इस पर चादर बिछा दें। बट वेट अ मोमेंट फर्स्ट, लेकिन एक लम्हे इंतज़ार करो। सेइंग दिस ही वेंट एंड फेच्ड मोर हे टू मेक द बेड थिकर, ये कहने के बाद वो गए और फेच होता है लेकर आना, मोर हे और ज़्यादा घास फूस, टू मेक द बेड थिकर, ताकि उस बिस्तर को और ज़्यादा मोटा बना सके, क्योंकि जितना वो मोटा होगा उतना आरामदेह होगा, तो इसलिए वो और ज़्यादा घास फूस लेकर आ गए। हेडी वुड बी वेरी कंफर्टेबल, अब यहाँ पर हेडी बहुत पुरसकून महसूस करेगी, बहुत आरामदेह महसूस करेगी, एंड वुड नॉट बी एबल टू फील द हार्ड फ्लोर, अब उसको यहाँ पर सख्त फर्श महसूस नहीं होगा, अंडरनीथ हर बेड, अपने बिस्तर के नीचे, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे। हेडी हैड कोट होल्ड ऑफ द शीट, अब हेडी ने चादर को पकड़ा, बट इट वॉज ऑलमोस्ट टू हैवी फॉर हर टू कैरी, और ये उसके लिए, हैवी का मतलब होता है भारी, और ऑलमोस्ट तकरीबन, कैरी का मतलब होता है उठाना, और ये उसके लिए बहुत भारी था कि वो उसको उठा सकती चादर को, वो बहुत भारी चादर थी। इट वॉज अ गुड थिंग, और ये एक अच्छी चीज़ थी, दैट द शीट वॉज थिक, कि वो चादर मोटी थी, एंड हैवी और भारी थी, बिकॉज क्योंकि द शार्प स्टॉक्स ऑफ द हे वुड नॉट पोक थ्रू इट एंड हर्ट हर, शार्प बोलते हैं तेज़, स्टॉक्स होते हैं कांटे या उसके अंदर जो तिनके थे भूसे में, ऑफ द हे, उस भूसे या घास फूस के, वो नॉट पोक, पोक का मतलब होता है चुभना, थ्रू इट, उसमें से गुजर कर, एंड हर्ट हर, उसको नुकसान दे सके। तो उस मोटी चादर का ये फ़ायदा था कि उसमें से घास के जो तिनके थे वो उसको चुभ नहीं सकते थे। ग्रैंडफादर एंड हेडी वर्कड टुगेदर, ग्रैंडफादर और हेडी ने इकट्ठे काम किया, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, द शीट, चादर को, ओवर द बेड, उस बिस्तर के ऊपर, टकिंग इट इन अंडर द हे, और उसको एक तरफ से घास के, उस घास फूस के ढेर के नीचे भी उसको टक कर दिया, उसको उसके अंदर फंसा दिया। इट नाउ लुक्ड लाइक अ वेरी टाइडी एंड कम्फर्टेबल बेड, और अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत आरामदेह बिस्तर लग रहा था देखने में। हेडी लुक्ड थॉटफुल, हेडी यहाँ पर कुछ सोचने लगी। इट नीड्स अ कवर, इसको एक कवर की ज़रूरत है। ग्रैंडफादर, शी सेड, उसने कहा, यानी उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि ग्रैंडफादर, इसको अभी एक कवर की ज़रूरत है। ओह यस, ही अग्रीड, वो इस बात से राज़ी हुए, अग्री का मतलब होता है राज़ी होना, उन्होंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की कि हाँ। आफ्टर मोर सर्चिंग, कुछ और तलाश के बाद, ही फाउंड अ स्मॉल कवर, उनको एक छोटा सा कवर मिला, फॉर हेडी, हेडी के लिए। शी वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश थी, विद हर बेड, अपने बिस्तर से, एंड वांटेड टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए जाना चाहती थी। आई थिंक वी माइट ईट समथिंग फर्स्ट, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा, मुझे, मेरे ख्याल में, या मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो? इन द एक्साइटमेंट ऑफ बेड मेकिंग, उस बिस्तर की तैयारी की जो एक्साइटमेंट या खुशी थी, हेडी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स, हेडी बाकी हर चीज़ को भूल चुकी थी। फॉरगॉटन होता है भूलना, एवरीथिंग हर चीज़। बट नाउ, लेकिन अब, हेडी रियलाइज्ड, हेडी को इस बात का एहसास हुआ, दैट शी वॉज वेरी हंग्री, कि वो बहुत भूखी थी।
She had not had anything to eat. उसने कुछ भी नहीं खाया था. Since the small breakfast she had eaten before the long hot journey. इस बहुत लंबे और गर्म सफ़र से पहले जो उसने एक हल्का फुल्का सा, स्मॉल वैसे छोटे को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे होगा कि जो उसने हल्का फुल्का नाश्ता लिया था, उसके बाद उसने कुछ नहीं खाया. सो शी आंसर्ड क्विकली. तो उसने जल्दी से जवाब दिया. येस आई थिंक सो टू. मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ. लेट्स गो देन. तो चलो फिर. एज वी बोथ थिंक अलाइक. जैसा कि हम एक जैसा सोचते हैं. सेड द ओल्ड मैन. बूढ़े आदमी ने कहा. इन द मेन रूम. उस मरकज़ी कमरे में. ग्रैंडफादर सैट बाय द फायर. ग्रैंडफादर आग के पास ही बैठ गए. ही स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क एंड टू टोस्ट सम चीज़. उन्होंने वहाँ पर दूध को गर्म करना शुरू किया और चीज़ को टोस्ट करना शुरू किया. हेडी वॉच्ड केयरफुली. हेडी सब कुछ बहुत मोहतात होकर देख रही थी या बहुत गौर से देख रही थी. सडनली अचानक. शी जम्प्ड अप. उसने छलांग लगाई और खड़ी हो गई. एंड रैन टू द कबर्ड. और अलमारी की तरफ भागी. शी स्टार्टेड गोइंग बिजली बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. और वो बहुत मसरूफियत के साथ, जैसे वो ज़्यादा मसरूफ़ है और वो आगे पीछे हरकत कर रही थी. कभी आगे जा रही थी और कभी पीछे आ रही थी. व्हेन ग्रैंडफादर गॉट अप. जब उसके जो दादा बू थे वो उठे. टू पुट द चीज़ ऑन द टेबल. उस चीज़ को या उस पनीर को टेबल पे रखने के लिए, मेज़ पर रखने के लिए. ही सॉ. उन्होंने देखा. इट वॉज टाइडली लेड विद द ब्रेड. कि उसके ऊपर ब्रेड भी पड़ी हुई थी. 2 प्लेट्स, 2 प्लेटें पड़ी थी. एंड द नाइफ और छुरी. हेडी हैड रिमेंबर्ड ऑल दैट देयर वाज इन द कबर्ड. हेडी को याद था कि ये सब चीज़ें अलमारी में हैं. एंड शी न्यू विच थिंग्स वुड बी वांटेड फॉर देयर मील. और उसे पता था कि उसके खाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. ओह दैट्स राइट सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा. ओह ये ठीक है. आई एम ग्लैड. मैं खुश हूँ. टू सी. ये देख कर. दैट यू हैव सम आइडियाज़ फॉर योर ओन. कि तुम्हें खुद से भी कोई ख्याल आया या तुम्हारे जहन में खुद से कोई आइडिया आया. एज ही स्पोक. जैसे उन्होंने बोला. ही लेड द टोस्टेड चीज़ ऑन सम ब्रेड. उन्होंने टोस्ट की हुई जो चीज़, जो पनीर थी, उसको ब्रेड के ऊपर रखा. बट देयर इज़ स्टिल समथिंग मिसिंग. लेकिन अभी भी कुछ कमी है. यानी पनीर को ब्रेड पर रखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें इस चीज़ का ख्याल खुद से आया, कि तुमने बर्तन वगैरह सब सेट कर दिए, लेकिन अभी भी किसी चीज़ की कमी है. हेडी थॉट. हेडी ने सोचा. व्हाट इज़ इट. ये क्या है. शी लुक्ड. उसने देखा. एट द जग ऑफ मिल्क. दूध के जग की तरफ. देन शी रैन. फिर वो भागी. क्विकली. जल्दी से. बैक टू द कबर्ड. वापस अलमारी की तरफ. एंड कॉट द 2 बाउल्स फ्रॉम इट. और उसमें से 2 प्याले लेकर आई. गुड. वेरी हेल्पफुल. अच्छा, बहुत मददगार. नाउ अब वेयर विल यू सिट. अब तुम कहाँ बैठोगी. ग्रैंडफादर was sitting on the only chair in the room. अब ग्रैंडफादर उस चेयर पर बैठे थे जो एक ही थी उस रूम के अंदर. उस कमरे में जो एक ही चेयर थी उस पर वो खुद बैठे थे. हेडी गॉट द स्टूल. हेडी स्टूल ले आई एंड सैट ऑन इट. और उस पर बैठ गई. शी वॉज टू स्मॉल. वो बहुत छोटी थी. टू रीच द टेबल. मेज़ तक पहुँचने के लिए. इट इज़ टू लो. ये बहुत नीचा है. बट वी शैल फिक्स इट दैट लेटर. हम इसको बाद में ठीक कर लेंगे. फिक्स का मतलब होता है ठीक करना या मरम्मत करना. हम इसकी मरम्मत बाद में कर लेंगे. सेट ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा. नाउ अब कम अलॉन्ग लेट्स ईट. साथ आओ और खाते हैं या खाना शुरू करते हैं. ही स्टूड अप. वो उठे एंड मूव्ड हिज चेयर इन फ्रंट ऑफ हेडी स्टूल. उन्होंने अपनी कुर्सी को हेडी के स्टूल के सामने रख दिया. ही पुट अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन द चेयर. उन्होंने दूध का एक प्याला चेयर पर रखा. नाउ हेडी हैड हर ओन टेबल. अब हेडी का अपना एक छोटा सा मेज़ था. देन ही ब्रॉट हर अ लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड. उन्होंने उसको ब्रेड का एक बड़ा सा टुकड़ा दिया. एंड अ पीस ऑफ द गोल्डन चीज़. और सुनहरी रंग की पनीर का भी एक टुकड़ा दिया, यानी जिसको वो टोस्ट कर रहे थे तो वो गोल्डन हो गया था. एंड टोल्ड हर टू ईट. और उसको बताया कि वो खाए. हेडी लिफ्टेड द बाउल. हेडी ने प्याला उठाया विद बोथ हैंड्स. दोनों हाथों से. एंड ड्रैंक. और पिया. विदाउट पॉज. बिल्कुल भी वक्फा किए बगैर. पॉज का मतलब होता है गैप देना. तो उसने बिल्कुल भी कोई गैप नहीं दिया, यानी वो बहुत भूखी थी. टिल इट वॉज एम्प्टी. यहाँ तक कि वो ख़त्म हो गया. शी वॉज थरली वेरी थर्स्टी फ्रॉम हर लॉन्ग हॉट जर्नी. और उसको अचानक ही बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी उसके लंबे और गर्म सफ़र की वजह से. वॉज द मिल्क नाइस आस्क्ड हर ग्रैंडफादर. उसके ग्रैंडफादर ने पूछा. क्या दूध अच्छा था. इट इज़ द बेस्ट आई एवर हैड आंसर्ड हेडी. हेडी ने जवाब दिया कि ये इतना अच्छा था कि अब तक का सबसे बेहतरीन. बेस्ट बोलते हैं सबसे अच्छे को. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर का एक अनबायस्ड सा एनालिसिस देखते हैं कि इस चैप्टर में जिस बच्ची का जिक्र हुआ है हेडी उसका नाम है. और शुरू में बता दिया था कि वो एक
क्लेवर गर्ल थी, या अपने ग्रैंड फादर को लग रहा था उसके कि वो एक समझदार बच्ची है। तो पूरे चैप्टर में हम देख सकते हैं कि उसने काफ़ी समझदारी दिखाई, यानी उसने अपने ग्रैंड फादर को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया, और जो कुछ भी उनके पास था, यानी बिस्तर बनाने के लिए भी उसने उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं किया कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसा नहीं चाहिए। जो कुछ भी अवेलेबल था उसने उसके अंदर बहुत अच्छे से मैनेज किया, और खाने के वक्त भी उसने नहीं तंग किया कि उसको नूडल्स या कोई और चीज़ चाहिए। जैसे वो दूर से आई थी और उनके पास फ़र्स्ट टाइम विज़िट करने के लिए आई थी, तो उसने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा, और जैसे ही वो एंटर हुई तो उसने गेस कर लिया था कि उनके पास क्या क्या सामान है, और उसने हंसी खुशी उसके अंदर ही गुजारा करने की कोशिश की। यहाँ पे उसकी एज 5 इयर्स बताई गई है, और इतनी एज के बच्चे के लिए वाकई बहुत बड़ी बात है अगर वो किसी के घर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है और उसके बाद वो इतनी समझदारी दिखाता है तो। So overall it was a good chapter. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.